بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSSC CGL اور 6 to 8 کے امیدواروں کے لیے جو 100 سوال کا سابقہ کوشچن بنا تھا، اس میں لوگوں نے کافی پذیرائی کی، آپ لوگوں نے غور سے دیکھا اور مستفید ہوئے، اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک اور سیٹ آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے جھارکھنڈ میں اردو کے حوالے سے، کیونکہ سوال کہاں سے پوچھا جائے گا یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے۔ لہٰذا پھر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ ہم لوگ کوشش کرتے رہیں، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ مایوس نہ ہوں، کوشش کرتے رہیں، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ رہی بات جھارکھنڈ میں اردو والا، تو وہ ہم ایک ویڈیو آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ فی الحال ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں 100 کوشچن کا۔ سوال نمبر 1 ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے ہے ہسپانوی، بی ہے انگریزی، سی ہے ترکی، ڈی ہے عربی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد اردو ناول کا آغاز ہوا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو ناویلا سے مشتق ہے، نکلا ہے۔ ناویلا NOVELLA، ناویلا جو اٹالین لفظ ہے جس کو اردو میں اطالوی بولتے ہیں۔ تو اگر انگریزی اور اطالوی دونوں ہوگا تب آپ انگریزی پہ نشان لگائیں گے، کیونکہ ناول کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے ناول؟ انگریزی ہے۔ ناویلا پوچھے گا تو آپ اطالوی پہ لگائیے گا، یا پھر کہیے کہ آپ پوچھے گا کہ ناول کس زبان کا ماخذ ہے، ناول کس زبان کے اس سے ماخذ کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، تب آپ اطالوی لگائیے گا۔ لیکن سوال اگر سیدھا سادہ ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے، تو پھر آپ بغیر خوف کے انگریزی پر لگائیے گا۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا انگریزی۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ بات بہت مشہور ہے کہ دکن میں قلی قطب شاہ تھے، جو گولکنڈہ حکومت کے 5ویں بادشاہ تھے، وہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ آپشن اے، بی اور ڈی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت بعد کے شاعر ہیں۔ مرزا غالب، میر تقی میر اور ولی دکنی۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اسی لیے جواب ہوگا آپشن سی۔ سوال نمبر 3 ہے، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نکات الشعراء تذکرہ ہے۔ تذکرہ بولتے ہیں ادبی ڈائری کو۔ بچپن میں ہم لوگ ڈائری استعمال کرتے تھے، اپنے زمانے کے چیزوں کو لکھتے تھے۔ اسی طرح شاعر بھی اپنے زمانے کی چیزوں کو، اپنے زمانے کے شعراء کو، ان کے حالات زندگی، ان کے اچھے اشعار کو جمع کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اردو کا یہ پہلا تذکرہ ہے جو 1752 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ لکھنے والے ہیں محمد تقی میر یا میر تقی میر۔ تو اس کا جواب ہوگا آپشن ڈی۔ اے، بی اور سی بالکل نہیں ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ نظم ہم جانتے ہیں پوئٹری، یہاں پوچھ رہا ہے کس زبان کا لفظ ہے، تو نظم ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو منظم سے نکلا ہے۔ تنظیم، منظم، نظامت سب اسی سے ہے، نظم سے۔ نظم کے معنی ہوتا ہے، آگے آئے گا اس طرح کا سوال، نظم کا معنی ہوتا ہے لڑی میں موتی پرونا۔ جس طرح سے شعر کو ہم ایک ایک چیز درست کر کے لکھتے ہیں، اسی طرح بالکل موتی کو ہم لڑی میں پروتے ہیں تاکہ وہ خوبصورتی اس کی ظاہر ہو سکے۔ لہٰذا نظم کا لغوی معنی ہوگا لڑی میں موتی پرونا، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ابھرنش کا کیا معنی ہے؟ ابھرنش بولتے ہیں بگڑی ہوئی زبان، یہ پراکرت سے بگڑ کر نکلی ہے۔ پہلی زبان آرین جب آئے تو ان کی زبان تھی سنسکرت کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ پراکرت میں تبدیل ہوئی زبانیں، اور اس کے بعد ابھرنش کا معنی ہی ہوتا ہے بگڑی ہوئی زبان، بھرشٹ زبان۔
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6 है, वहाब दानिश की कौन सी नज़्म नहीं है। इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कि ए है तेरा नाम, बी है एक लड़का, सी है उसूल के जजीरे, डी है बलाए ज़मीनी। तो इन ऑप्शन को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑप्शन बी जो है एक लड़का अख्तरुल ईमान की बहुत मशहूर नज़्म है। तो हमें नहीं मालूम है कि वहाब दानिश के कौन कौन सी नज़में हैं। बलाए ज़मीनी तो खैर ठीक है, बीए के निसाब में शामिल है, लेकिन तेरा नाम और उसूल के जजीरे कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ हमें क्लू मिल रहा है एक लड़का से। एक लड़का अख्तरुल ईमान की बहुत अच्छी नज़्म है, मशहूर नज़्म है, जिसमें उन्होंने अपनी शख्सियत को बताने की कोशिश की है। तो इसमें आप बिल्कुल टिक लगाइएगा ऑप्शन बी पर, एक लड़का। सवाल नंबर 7 है, कौन सा नावल ज़की अनवर का नहीं है। इसमें भी यही मसला है, ज़की अनवर के ने कई नावल लिखे और कई छपे और कई तो हमारे पास दस्तयाब भी नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नावल उनका नहीं है। तो क़यामत तो इनका हो सकता है, दूसरी लड़की भी है, काली माटी अली अमजद का नावल है। तो अब देखते हैं, काली माटी जब कंफर्म हो गया कि ये अली अमजद का नावल है तो जाहिर सी बात है तीनों नावल इनके होंगे ही होंगे। क़यामत है, दूसरी लड़की है और साजिश है, लिहाजा नहीं है पूछा है तो काली माटी पर निशान लगाइएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है, झेल में कौन सा नावल इलियास अहमद गद्दी का नहीं है। हमने इलियास साहब को बहुत गौर से पढ़ा है तो हमें अंदाज़ा है कि इलियास साहब का कौन कौन सा नावल नहीं है या है। हम जानते हैं कि इलियास अहमद गद्दी ने जो नावल लिखा, पहला नावल लिखा ज़ख्म लिखा, फिर मरहम लिखा, फिर फायर एरिया लिखा और एक अधूरा नावल बग़ैर आसमान की ज़मीन, उसका काम शुरू किया था उन्होंने। उसकी कुछ किस्तें भी ज़हन जदीद दिल्ली से छपी थी, जिसके मुदीर थे ज़ुबैर रिज़वी। तो साजिश जो उनका नावल, ये उनका लग रहा है कि इलियास साहब का नावल नहीं है, लिहाजा आप आंख बंद कर पे साजिश पे निशान लगाइएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे अपनी साजिश में। सवाल नंबर 9 है, बुनियादी तौर पर नज़्म की कितनी किस्में हैं। नज़्म हम जानते हैं अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी माना होता है लड़वी मोती पिरोना। इस्तिलाही माना होता है कि किसी एक मज़मून को बांध कर उसके हवाले से भरपूर बात करना शेर के अंदाज़ में, ये नज़्म है। हम ये भी जानते हैं कि नज़्म की 4 किस्में होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन अगर सी है तो इसी पर निशान लगाइएगा। 5 होता तब भी ये कंफ्यूज करने वाला होता, क्योंकि ना इसकी 4 जो किस्में हैं, पाबंद नज़्म है, नसरी नज़्म है, नज़्म मुअर्रा है और नज़्म आज़ाद है। तो ये 4 किस्में हैं। बाज़ लोग तवील नज़्मों को अलग से कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, इस तरह से 5 हो गई। लेकिन बाज़ लोग पाबंद और तवील को एक साथ लिखते हैं और बाकी जो 3 किस्में हैं वो अलग। तो 4 अगर होगा तो 4 पे निशान लगाइएगा। बाय द वे कभी 4 का ऑप्शन ना रहे तो 5 पे लगाइएगा, क्योंकि पहले हो गई तवील नज़्म, फिर पाबंद नज़्म, फिर मुअर्रा नज़्म, फिर आरी नज़्म मुअर्रा हो गई, उसके बाद नसरी नज़्म और उसके बाद आज़ाद नज़्म। तो ये हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है, नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है। जो सवाल नंबर 1 था, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है, वहाँ पे हमने किया था अंग्रेज़ी, लेकिन यहाँ कह रहा है नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है। तो मतलब ये इशारा कर रहा है, नावेला की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग फ़ौरन हमारा जहन अंग्रेज़ी में ना जाकर हम लोग अतालवी पर गौर करेंगे, जो इटालियन लफ्ज़ है। तो इसका सही जवाब होगा इटालियन या अतालवी, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है, झेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ कहकशां परवीन का है। कहकशां परवीन का ताल्लुक़ झारखंड से रहा है। पुरुलिया में इन्होंने आँखें खोली 1958 में। फिर मैट्रिक करने के बाद रांची आ गए, यहीं से विमेंस कॉलेज से इंटर बीए किया, एमए रांची यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी रांची यूनिवर्सिटी से की और डीलिट भी किया इन्होंने, डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर
उसके बाद वो पहले बोकारो महिला कॉलेज में ज्वाइन किया 1988 में, और 1996 में जब बीपीएससी के थ्रू जब सिलेक्शन हुआ तो उनको डोरंडा कॉलेज दिया गया। अभी 2023 में 24 में उनका इंतकाल हुआ है। तो पूछ रहा है कि कहकशां परवीन का अफसानवी मजमूआ कौन सा है, तो उनके 5 अफसानवी मजमूए हैं। तो उन 5 अफसानों को देखना होगा हम लोगों को, ज़हन में रहे तो अच्छी बात है। अभी ताज़ा इंतकाल हुआ है तो सवाल हो सकता है पूछे वो, तो पूछ सकता है। एक मुट्ठी धूप है, धूप का सफ़र है, फिर मोर के पाँव हैं, पानी का चांद है, ये उनके अफसानवी मजमूए हैं। लक्ष्मण रेखा मंज़र काज़मी का अफसानवी मजमूआ है। धूप का सफ़र कहकशां परवीन का अफसानवी मजमूआ है। बाबिल का मीनार अख्तर आज़ाद का अफसानवी मजमूआ है। और लैंड्रा असलम जमशेदपुरी का अफसानवी मजमूआ है। और सबका ताल्लुक़ झारखंड से किसी न किसी तौर पर बहरहाल है। लिहाजा आप ऑप्शन बी पर निशान लगाइएगा। सवाल नंबर 12 है, सही ज़ुमरे पर निशान लगाएं। मतलब इसमें 2 सही है 2 गलत है। देखिए ABCD लिखा हुआ है, 2 सही है 2 गलत। पहला है निकातुश्शोरा 1752 में तज़किरा लिखा गया, सही बात है। बी है मील के कुल 7 दीवान है, ये भी सही है। 6 उर्दू में है, 1 फ़ारसी में है। तीसरा है मीर तक़ी मीर 1982 में लखनऊ गए, गलत है। 1900 नहीं बल्कि 1781-82 में गए थे, ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी है माह लका का ताल्लुक़ अफसानवी नस्र से है, ये भी नहीं है, वो शायरा थी। तो ऑप्शन सी और डी गलत है। ए बी सही है, तो यहाँ ऑप्शन ए में आएगा। 1 और बी 2 दुरुस्त हैं, लिहाजा आप उसी पर निशान लगाइएगा कि 1 नंबर और 2 नंबर दुरुस्त है। तो इस तरह से भी सवाल आपको लिए आ सकता है, क्योंकि सवाल बनाने वाले को इख्तियार है, वो किसी तरह के भी सवाल दे सकता है आपको। सवाल नंबर 13 है, जदीदियत का आगाज़ कब होता है। ऑप्शन ए है 1950, बी है 1960, सी है 1970, डी है 1980। 10-10 साल का फ़र्क है तो आपके लिए आसानी है। अगर वो दे देता 50, 51, 52, 53 इस तरह, इसमें थोड़ा दुश्वारी होती है। जदीदियत एक रुझान आया तरक्की पसंद तहरीक के ज़िद में। तरक्की पसंद तहरीक आई थी 1936 से 1960 तक। जदीदियत को बोलते हैं मॉडर्निज़म, वो आया था 1960 के आसपास। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी थे इलाहाबाद के, उन्होंने एक मैगज़ीन निकाला जिसका नाम था शब खून। शब खून बोलते हैं रात में हमला करने वाली फ़ौज को, कि शब खून मार दिया। तो वो रिसाला था, उस रिसाले से उन्होंने आगाज़ किया और पूरा ट्रेंड चेंज हो गया 20 सालों के लिए, 1960 से 1980 तक। तो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो जदीदियत का आगाज़ 1960 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए। ये कोई एक और इकबाल की बात नहीं कर रहा है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है 76, बी 77, सी 78, डी 79। तो 1877 में उनकी पैदाइश हुई है, तो पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू की दूसरी बड़ी तहरीक है। पहली तहरीक है अलीगढ़ तहरीक, जो 1857 से चली, 1914 में उसका ख़ात्मा हुआ। और ख़ात्मा बिल्कुल नहीं हो गया, बल्कि उसका ड्यूरेशन माना जाता है। उसी तरह हम आए तरक्की पसंद तहरीक में 1936 से लेकर 1960 तक का इसका दौर है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका ख़ात्मा हो गया, बल्कि अभी भी बहुत से अदीब ऐसे हैं जो तरक्की पसंद नज़रिए की हिमायत करते हैं और उसी के तहत अपनी कहानियाँ लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 1932, बी है 1919, सी है 1916, डी है 1936। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 1936 में इसका आगाज़ हुआ। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई 1936 में लखनऊ में, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी।
सवाल नंबर 16 है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है महमूद खां शिरानी, सी है सैयद सुलेमान नदवी, डी है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में, जो 1880 में किताब लिखी गई थी, वो तज़किरे की किताब है, उर्दू ज़बान में उर्दू शायरों का तज़किरा है। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये कौल हो गया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। सवाल नंबर 17 है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? हम जानते हैं कि 1869 में उर्दू का पहला नावल लिखा गया और उसको लिखने वाले थे डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद। नावल का नाम था मिरअतुल अरूस। मिरआ बोलते हैं आईना को, अरूस बोलते हैं दुल्हन को, तो दुल्हन का आईना उसका तर्जुमा हुआ। मिरअतुल अरूस के नाम से पहला नावल लिखा मौलवी नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद ने, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 18 है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। नंबर 1 है आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, सही है। बी है हाथ पाँव मारना, कोशिश करना, ये भी सही है। सी है आँखें चुराना यानी नज़रें हटाना, ये सही नहीं है। डी है दिन को तारे नज़र आना, बहुत इंतज़ार करना, ये भी सही नहीं है। तो ए और बी सही जवाब है, इसीलिए ये ए और बी दुरुस्त, ऑप्शन ए सही जवाब इसका है। सवाल नंबर 19 है, मगरबी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? हम जानते हैं कि मगरबी हिंदी को ग्रेरसन ने 5 बोलियों में तकसीम किया था और उसका नाम था खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। जहां पांचों नाम होंगे वो ऑप्शन सही होगा। पहला है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और गुजराती। गुजराती आने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, सिर्फ हरियाणवी है, बाकी सब गलत हैं। सी है पंजाबी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। यहाँ पंजाबी की आने की वजह से ये गलत हो गया है। ऑप्शन डी है कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है शेख नूर मोहम्मद, बी है नूर हसन, सी है नूर हुसैन, डी है नूर अहमद। नूर तो नाम था उनका, लेकिन असली नाम था नूर मोहम्मद, इस लिहाज से हुआ शेख नूर मोहम्मद। सवाल नंबर 21 है, लफ्ज़ रंज का मुतरादिफ क्या है? तो हम सुनते आए हैं रंजो गम या रंजो अलम, इस लिहाज से ऑप्शन ए सही जवाब है, दोनों का माना एक है। सवाल नंबर 22 है, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ये किसका शेर है? ऑप्शन ए है मीर, बी है फैज़, सी है गालिब, डी है फैज़। फैज़ दो बार आ गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। हम जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ज़राफ़त या हंसाने वाले अशार भी कहते हैं, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जब किताब लिखी यादगार गालिब, जो किताब छपी 1897 ईस्वी में, उसमें उन्होंने कहा था गालिब हैवान ज़रीफ़ है, ऐसा हैवान जो हंसने हंसाने वाला हो। तो इस तरह के बहुत से अशार हैं गालिब के हवाले से जो ज़रीफ़ाना अशार हैं। तंज़ो ज़राफ़त आपने सुना होगा, तो गालिब इस हवाले से मशहूर हैं। सवाल नंबर 23 है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? इससे पहले आया था नावल निगार कौन सा है, नज़ीर अहमद, तो पहला नावल कौन सा होगा? मिरअतुल अरूस, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 24 है, मिर्ज़ा गालिब के कितने बच्चे थे और कितने फौत हुए? ऑप्शन ए है 6 बच्चे थे, 5 फौत हुए, बी है 7 बच्चे थे, 7 फौत हुए, सी है 7 बच्चे थे, 4 फौत हुए, फौत मतलब इंतकाल होना, डी है 6 बच्चे थे, 3 फौत हुए। इसमें ऑप्शन बी हम जानते हैं कि उनके जितने बच्चे थे कोई बचा नहीं था, लिहाजा ऑप्शन बी सही जवाब है, 7 बच्चे थे और 7 फौत हो गए।
सवाल नंबर 25 है, किस तहरीक की सदारत प्रेमचंद ने की? इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं कि पहली तहरीक थी, दूसरी तहरीक थी अलीगढ़ तहरीक, जिसकी सदारत तरक्की पसंद तहरीक थी, उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी 1936 में, अप्रैल 1936 में। और लखनऊ में उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो ये तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 26 है, गज़ल के आखिरी शेर में शायर क्या इस्तेमाल करता है? उर्फियत है, कुन्नियत है, लक़ब है, तखल्लुस है। ऑप्शन डी सही जवाब है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 27 है, इकबाल एक फ़ासिस्ट शायर हैं, ये कौल किसका है? अक़वाल में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन उसमें भी आप तुक्का मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अख्तर हुसैन रायपुरी ने कहा था कि इकबाल एक फ़ासिस्ट शायर हैं। सवाल नंबर 28 है, मिर्ज़ा गालिब ने किसे गोद लिया था? जब उसकी औलाद नहीं हो रही थी, कोई बच नहीं रहा था, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उसका नाम क्या था? तो हम जानते हैं ज़ैनुद्दीन खां आरिफ था नाम, तो यहाँ आरिफ दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 29 है, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? इसका 4 ऑप्शन हैं। अब्दुल्ला बेग इसका सही जवाब है, बी अब्दुल्ला बेग उनके वालिद साहब का नाम था। सवाल नंबर 30 है, शोरसेनी का इलाक़ा कौन सा है? शोरसेनी का इलाक़ा आपने पढ़ा होगा, जो सच्ची जानशीन है तो उसको मथुरा का इलाक़ा बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, शोरसेनी का इलाक़ा है। सवाल नंबर 31 है, इलियास अहमद गद्दी कब पैदा हुए? तो दो इख्तिलाफ़ात हैं लोगों के बीच में, कोई कहता है 1932, कोई कहता है 1934, तो और दोनों ऑप्शन आपके यहाँ हैं। लेकिन बेशतर लोगों ने जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, मुस्तकिल किताब लिखी है इलियास अहमद गद्दी के हवाले से, चाहे डॉक्टर हुमायूं अशरफ हों, मोहम्मद अल्लामुद्दीन हों, डॉक्टर रिजवाना हों, सब ने 1932 का ज़िक्र किया है। और हम ये भी जानते हैं कि ग़ियास साहब 1928 में पैदा हुए थे और आप उनसे हुए 4 साल के छोटे थे, लिहाजा 1932 ज़्यादा मौजू हैं। रेख्ता वगैरह में तारीख़ की गलतियां हैं, नेट पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा आप कुछ हमारी भी मान लीजिए। 1932 सही जवाब होगा। आप बहुत सी किताबें हैं, उसमें आप उन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डॉक्टर हुमायूं अशरफ ने किताब लिखी है, बाकायदा मुस्तकिल किताब है, 2-3 किताबें उनकी हैं, इस हवाले से आप उसको देख सकते हैं, हवाले के तौर पर उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। सवाल नंबर 32 है, पहाड़ी बोली में किसका शुमार नहीं होता है? पहाड़ी जो बोलियां हैं, तो नेपाली पहाड़ी बोली है, गोरखाली पहाड़ी बोली है, और डी जो पहाड़ी है वो ख़ुद पहाड़ी है। बी जो बुंदेली है वो पहाड़ी नहीं है, ये मगरबी हिंदी की बोली है, लिहाजा इसका जवाब होगा बुंदेली। सवाल नंबर 33 है, ज़ैल में किसने मीर के हवाले से काम नहीं किया है? मीर पर जिन लोगों ने तनकीदी किताबें लिखी हैं उनमें फ़ारूक़ी साहब ने लिखी है किताब, शेर शोर अंगेज़ नाम है किताब का। अहमद महफूज ने किताब लिखी है, बयान मीर है किताब का नाम। निसार अहमद फ़ारूक़ी ने किताब लिखी है मीर की आबिती, हयात और शायरी वगैरह के हवाले से। मालिक राम अलग हैं, मालिक राम इसका सही जवाब होगा, उन्होंने काम नहीं किया है। सवाल नंबर 34 है, माल्टो का शुमार किस ख़ानदान में होता? ऑप्शन ए है द्रविड़ी, बी है ऑस्ट्रिक, सी है हिंद यूरोपी, डी है हिंद आर्याई। तो हम जानते हैं कि माल्टो का शुमार द्रविड़ी ख़ानदान में होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। द्रविड़ी में कुड़ुक और माल्टो आते हैं, और ऑस्ट्रिक में मुंडारी, खड़िया, हो, संथाली, बिरहोर और असुर आते हैं। सवाल नंबर 35 है, इकबाल इमामुल अस्र है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए अब्दुल माजिद दरियाबादी, बी मालिक राम, सी अकबर इलाहाबादी, डी आज़ाद। इसका सही जवाब होगा अब्दुल माजिद दरियाबादी। सवाल नंबर 36 है, मुंडा किन लोगों की ख़ास बोली है? मुंडा मुंडारियों की ख़ास बोली है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 37 है,
بہادر شاہ ظفر نے غالب کو کون سا خطاب نہیں دیا؟ نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ 3 خطاب دیا تھا، جواد الدولہ نہیں دیا تھا، یہ سرسید کو خطاب ملا تھا، اسی لیے آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 38 ہے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، لیکن مقطع کا دوسرا نام ہوتا ہے متمم غزل۔ غزل جہاں تمام ہو رہی ہے، اسی لیے اس سوال کو گھما دیا ہے، آپشن سی صحیح جواب ہوگا، متمم غزل۔ سوال نمبر 39 ہے، فائر ایریا کس کی تصنیف ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ الیاس احمد گدی کا ناول ہے فائر ایریا۔ سوال نمبر 40 ہے، ظہیر الحق کس ادیب کا نام ہے؟ جھارکھنڈ کے 3 شاعر بہت اہم ہیں، پرکاش فکری، وہاب دانش اور صدیق مجیبی۔ پرکاش فکری کا اصلی نام ظہیر الحق ہے، آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، شفا اپنے مقدور ہی میں نہ تھی، یہ کس کے شعر کا مصرع ہے؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے، آپشن اے صحیح جواب ہے اس کا۔ 42 نمبر ہے، ذیل میں کون افسانہ نگار نہیں ہے؟ یہاں پہ 4 آپشن ہیں، 3 افسانہ نگار ہیں اور سب کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے۔ ذکی انور افسانہ نگار، منظر کاظمی افسانہ نگار، اختر آزاد افسانہ نگار، ابوذر عثمانی افسانہ نگار نہیں ہے، وہ ناقد ہیں، آپشن سی صحیح جواب ہوگا، یہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، لینن خدا کے حضور میں کس مجموعے میں شامل ہے؟ پہلا ہے بانگ درا، بی ہے بال جبریل، سی ہے ضرب القلوی، ڈی ہے ارمغان حجاز، آپشن بی صحیح جواب ہے، بال جبریل میں لینن خدا کے حضور میں شامل ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، بند آنکھوں کا تماشا کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جھارکھنڈ کے حوالے سے ایک سوال ہے، اسلم بدر شاعر ہیں، خاکہ نہیں لکھا ہے، احمد سجاد نے خاکہ نہیں لکھا ہے، وہاب اشرفی نے خاکہ نہیں لکھا ہے، سید احمد شمیم ہیں جو خود بھی شاعر ہیں، کلیات غزل کے نام سے ان کے غزلوں کا دیوان آیا ہے، انہوں نے ایک خاکہ لکھا ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے بند آنکھوں کا تماشا، تو سید احمد شمیم، آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، گیت سناتی ہے ہوا کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ چاروں کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے، یہ آپ کے لیے دشواری ہو سکتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپشن اے راشد انور راشد کا شعری مجموعہ ہے گیت سناتی ہے ہوا، یہ نیچرل نظمیں ہیں سب اس میں، یہ ان کا تعلق رانچی سے تھا اور ابھی حال ہی میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، الیاس احمد گدی کہاں پیدا ہوئے؟ دنیا جانتی ہے کہ وہ جھاریا میں پیدا ہوئے، جھارکھنڈ کے صوبہ علاقہ جھاریا میں، تو آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، لفظ رسم کا مترادف کیا ہے؟ تو رسم و رواج ہوتا ہے، تو رواج، بی صحیح جواب ہے، رسم و رواج۔ سوال نمبر 48 ہے، 1801 میں مرزا نوشاہ کے کس قریبی آدمی کا وصال ہوا یعنی انتقال ہوا؟ سوال گھما دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 4 سال کے تھے وہ، تو والد صاحب کا انتقال ہوا تھا مرزا نوشاہ کے، یعنی مرزا غالب کو بول رہا ہے مرزا نوشاہ 1801 میں، تو سوال گھما دیا ہے، بس پریشان نہیں ہونا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، ہم اکثر مال کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مال و دولت کرتے ہیں، مال و متاع کرتے ہیں، تو مال و شکل نہیں کرتے ہیں، مال و حسن نہیں کرتے ہیں، مال و قدر نہیں کرتے ہیں، تو مال کے ساتھ آپشن اے ہوگا، مترادف ہے مال و متاع، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، یہ کس کی نظم سے یہ شعر مصرع لیا گیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ لینن سوال کر رہا ہے خدا سے کہ کب دنیا ہے منتظر روز مکافات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، یہ لینن خدا کے حضور سے سوال ہے، شعر ہے، مصرع ہے، اس لیے آپشن بی صحیح جواب ہے، لینن خدا کے حضور میں۔ سوال نمبر 51 ہے، لفظ صندوقچی کیا ہے؟ آپشن اے مصغر، مکبر، مرکب، ضمہ مکاں، تو صندوق سے صندوقچی ہے، اس میں مصغر ہے یہ چھوٹا،
बड़े से छोटा करना इसम मुसग्गर है और छोटे से बड़ा करना इसम मुकब्बर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 52 है, जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ये सवाल बिल्कुल अलग है आप लोगों से, और जो लोग जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है उनके लिए काफ़ी दुश्वारी हो सकती है, लेकिन कुछ परेशान नहीं होना है। मारूफ़ आज जान लीजिए कि उसको मारूफ़ बोलते हैं, जिसका फ़ाइल करने वाला मालूम हो, और जिसका नाम मालूम ना हो उसको मजहूल बोलते हैं। तो ए सही जवाब है। सवाल नंबर 53 है, दर्ज झेल में कौन सा किरदार फायर एरिया का नहीं है। सहदेव है, रहमत मियाँ है, इरफान भी है, मोहम्मदी खातून नहीं है। खातून तो है खतुनिया के नाम से, लेकिन मोहम्मदी खातून नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 54 है, हम माना अल्फाज को लुगत की इस्तिलाह में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। हम माना एक ही माना दे उसको बोलते हैं जू माना। तो ऑप्शन बी सही होगा। काफिया नहीं होगा, रदीफ़ नहीं होगी, कवाफ़ी नहीं होगी। तो ऑप्शन बचा बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 55 है, सादगी और तसव्वुफ़ किस दबिस्तान की शेरी खसूसियत है। दबिस्तान बहुत से हैं, दबिस्तान दिल्ली, अज़ीमाबाद, लखनऊ, रामपुर, मुर्शिदाबाद। तो जो दो मशहूर दबिस्तान हैं उसमें दिल्ली की खसूसियत है कि सादगी है और तसव्वुफ़ है, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 56 है, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है। ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अज़मतुल्लाह खां ने कहा था गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। लिहाजा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 57 है, ग़यासमत गद्दी के ख़ानदान का आबाई पेशा क्या था। क्या था। बकरी पालना, दूध बेचना। ए और बी दोनों सही था। खेती करना नहीं है, ज़मीन बेचना नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है। बकरी पालना, जानवर पालना दोनों मुराद है उसमें, और दूध बेचना यही उनका कारोबार था। तो ए और बी यानी ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 58 है, उर्दू का पहला तज़किरा कब लिखा गया। ऑप्शन ए है 1952, बी है 1852, सी है 1752, डी है 1652। 1752 में पहला तज़किरा लिखा गया था, जिसका नाम था निकातुश्शोरा, और लिखने वाले थे मीर तकी मीर। ये अगर तज़किरे का सवाल कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये निसाब से बाहर का सवाल है तो मीर तकी मीर के हवाले से, लिहाजा उसको सवाल पूछने का हक़ है। आप लोग को बस जानना है कि सवाल घुमा रहा है तो आपको किस तरह से उसका जवाब देना है। सवाल नंबर 59 है, मीर तकी मीर का मदफन कहाँ है, यानी कहाँ दफन हुए हैं, कब्र कहाँ उनकी है, मज़ार कहाँ है, जो भी कह लें आप। तो लखनऊ आगरा में पैदा हुए वो, दिल्ली में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आखिरी उम्र में वो लखनऊ चले गए थे, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा, लखनऊ। 60 नंबर है, हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, एक है वेद और दूसरी किताब कौन सी है, दीवाने गालिब। ऑप्शन सी सही जवाब है। कहा है किसने, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा कि हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवाने गालिब। किस किताब में कहा, महासिने कलाम गालिब। गालिबन ये किताब 1923 ईस्वी में शाये हुई थी। गालिब के हवाले से बहुत बड़ी बात थी। सवाल नंबर 61 है, फायर एरिया का मरकज़ी किरदार कौन है। तो कपिल सिंह है, काला चंद है, इरफान है, सहदेव है। सहदेव नावल के शुरू से लेकर आखिर तक रहता है और एक इनकलाबी किरदार है, इसीलिए हम ऑप्शन डी पर जाएंगे, यही हमारा सही जवाब होगा। सवाल नंबर 62 है, फैज़ अहमद फैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे। जदीदियत तरक्की पसंदी थे, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे अच्छी तरह से, लिहाजा ऑप्शन डी इसको मान लीजिए आप। सवाल नंबर 63 है, इकबाल सबके लिए किसकी किताब है। एक किताब है फरमान फतेहपुरी की, इकबाल सबके लिए, बहुत अच्छी किताब है। इकबाल के हवाले से पैदाइश से लेकर वफ़ात तक का जिक्र और उनके तमाम तख्लीक़ात का तज़किया वगैरह उसमें है। एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से छपी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 64 है, झारखंड का पहला सफ़रनामा कौन सा है। वादी फ़रंग, बांग्लादेश को मैंने देखा लक्ष्मण रेखा के पार। तो हम जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा के पार के नाम से सफ़रनामा लिखा था इलियास मुगद्दी ने। ऑप्शन सी सही जवाब है। 65 नंबर है, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई।
तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ 1938 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 66 है, रहमत मियाँ किस नावल का एक अहम किरदार है? तो रहमत मियाँ फायर एरिया का अहम किरदार है, इसलिए ऑप्शन होगा डी सही जवाब। सवाल नंबर 67 है, किसका कौल है कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका सही जवाब होगा ख्वाजा बासित, ऑप्शन ए सही जवाब है ना। 68 नंबर है, सारा दिन धूप की सिनफी नौइयत क्या है? सारा दिन धूप क्या है? अफसाने हैं, खाके हैं, इंशाइये हैं, रिपोर्टाज है। अफसाने हैं ये, और सारा दिन धूप ये अफसानों का मजमूआ है। सवाल नंबर 69 है, इलियास अहमद गद्दी ने कुल कितने नावल लिखे हैं? इसमें वो नहीं पूछ रहा है कि मतबूआ या गैर मतबूआ। मतबूआ मतलब पब्लिश्ड, गैर मतबूआ अनपब्लिश्ड। तो कुल उनके 4 हो गए, ज़ख्म, मरहम, फायर एरिया और बग़ैर आसमान की ज़मीन। तो 4 पे आप निशान लगाइएगा। अगर पूछेगा मतबूआ नावल कौन है, पब्लिश्ड, तो आप 3 पे लगाइएगा। सवाल नंबर 70 है, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, ये मिसरा किस नज़्म से है? इसका ऑप्शन होगा मुझसे पहली सी मोहब्बत, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सवाल नंबर 71 है, मीर का असल नाम क्या है? मीर का नाम है मोहम्मद तकी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 72 है, इरफान किसका फ़र्जंद है? नावल फायर एरिया में इरफान फ़रीद का नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है नावल का। जगेशर का नहीं है, सहदेव का नहीं है। रहमत मियाँ का बेटा है, सहदेव है। रहमत मियाँ का बेटा है इरफान, तो उसका रहमत मियाँ का आएगा। ऑप्शन 73 है। सवाल नंबर 73 है, सही जवाब पर सही बयान की निशानदेही कीजिए। ग़ियास अहमद गद्दी फरवरी 28 में पैदा हुए, ठीक है। ग़ियास अहमद गद्दी का इंतकाल झरिया में हुआ, ये भी ठीक है। ग़ियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम इलियास था, गलत है। ग़ियास अहमद गद्दी का आबाई पेशा मुअल्लिमी था, पढ़ाते थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, लिहाजा ए और बी दुरुस्त है, यानी ए, ऑप्शन ए सही है। इस तरह का सवाल भी घुमा कर देगा आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 74 है, परिंदा किस बात की अलामत है? तो परिंदा है इनकलाब की अलामत है, वो इनकलाबी है, उसको इसीलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि इनकलाबी है, इनकलाब परस्त है, अंदर फड़फड़ा रहा है। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 75 नंबर है, लफ्ज़ हक़ की जेल में जमा क्या है? हक़ की जमा है हक़ाइक़, इसकी जमा है ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 76 है, लफ्ज़ मलक का जेल में जमा क्या है? मलक मतलब फ़रिश्ता, इसकी जमा होगी मलाइका, ऑप्शन डी सही जवाब है। मुल्क का होगा ममालिक, अगर मीम पर पेश होता तो मुल्क पढ़ते हो उसको, उसकी जमा होती ममालिक। मलक है मतलब फ़रिश्ता, उसकी जमा मलाइका। सवाल नंबर 77 है, मगधपुरी का दास्तान गो किसकी तसनीफ़ है? मगधपुरी के दास्तान गो इलियास अहमद गद्दी का मजमून है, जो खाका, बाज़ लोग कहते हैं खुद नवीश, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में है, तो वो इलियास अहमद गद्दी का है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 78 है, ज़ैल में किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? तो मीर अनीस मुसहफ़ी इंशा ये लखनऊ से हैं, सौदा ये दिल्ली के थे, लिहाजा सौदा सही जवाब है। 79 है, नज़्म जदीद का बुनियाद गुजार कौन है? चकबस्त, मजाज, आज़ाद, कर्नल, ऑप्शन सी सही जवाब है। नज़्म जदीद के बुनियाद गुजार में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आता है और कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में उन्होंने ये काम किया था। 80 नंबर है, ज़ेल में सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। सही ज़ुमरा क्या है? बांगे दरा 1924 में शाये हुआ, बिल्कुल सही। अरमगान हिजाज़ आधा उर्दू में आधा फ़ारसी में है, बिल्कुल सही। बाले जिब्रील पहला शेरी मजमूआ है, न ये गलत है। ज़रब कलीम अल्लामा इकबाल का आखिरी मजमूआ है, ये गलत है। मतलब ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दुरुस्त, यानी ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 81 है, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को कौन सा खिताब मिला? निज़ाम जंग, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, है ना, ये सब मिल चुका था। मलिकुश शोरा का खिताब, ऑप्शन डी सही जवाब है। 82 है, बाबा लोग में कुल कितने अफसाने हैं? ये थोड़ा सा बेतुका सवाल है, लेकिन आप जान लीजिए कि 9 अफसाने उसमें शामिल हैं। बाबा लोग जो 1969 में शाये हुआ, ग़ियास अहमद गद्दी का पहला शेरी अफसाने मजमूआ, ऑप्शन बी सही जवाब है। 83 नंबर है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869 में हुआ है, ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 84 है, नावल फायर एरिया
को कब अवार्ड दिया गया? 94 में नावल शाये हुआ है, 96 में उसको अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 85 है, अफसाने में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है? प्लॉट की अहमियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। शीन अख्तर का कहाँ पैदा हुए? शीन अख्तर गया पैदा हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। ज़राफ़त किस शायर की खसूसियत है? इससे पहले एक सवाल आया था तंज़ो ज़राफ़त के हवाले से और मिर्ज़ा गालिब पर हमने बात की थी, तो ऑप्शन डी होगा। ज़राफ़त वो हंसी वाली बातें करना ये गालिब की खसूसियत थी। 88 नंबर है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी कब शाये हुआ? तो 70 के बाद 77 है, 77 में शाये हुआ था परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, तो ये ऑप्शन ए सही जवाब है। 89 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे शायर कुदरत कहा है? ऑप्शन ए मीर तक़ी मीर को कहा है। सवाल नंबर 90 है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? ख़त आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है, लिहाजा वो उसे पूछने का पूरा इख्तियार है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 91 नंबर है, सादिक डॉक्टर सादिक के मुताबिक उर्दू अफसाने का नक्श अव्वल कौन है? तो नक्श अव्वल है सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून जो था गुज़रा हुआ ज़माना, उसको डॉक्टर सादिक कहते हैं, ये नक्श अव्वल है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 92 है, मीर तक़ी मीर का मासिर यानी एक ही ज़माने का कौन है? तो मीर का ज़माने का है इसमें ज़ाहिक है। ऑप्शन ए, क्यों गालिब बाद में पैदा हुए, शाद भी बाद के हैं, ज़ौक़ भी बाद के हैं, ये तीनों एक साथ हैं, लिहाजा होगा ज़ाहिक, मीर ज़ाहिक, जो मीर हसन और मीर अनीस वगैरह के रिश्तेदार थे, अब्बा दादा थे। 93 है, भेजी है जो मुझको शाह जमजाह ने दाल, है लुत्फ़ व इनायत शहनशाह पे दाल, इसमें कौन सी सनात है? यहाँ दाल दो माने में है, पहला माना दलील के माने में और दूसरा माना दाल जो खाने वाले पे है। पहला माना दाल खाने वाले है, दूसरा दलील के माने में है कि मुझे बादशाह ने जो दाल भेजी है वो इस बात की दलील है कि वो मुझे बहुत चाहते हैं। इसमें तजनीस बोलते हैं ऐसे अशार को, तजनीस ना। ऑप्शन ए सही जवाब है। 94 नंबर है, निर्वाण किसका अफसाना है? निर्वाण ज़की अनवर का अफसाना है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 95 नंबर है, ईहाम किस ज़बान का लफ्ज़ है? ईहाम वहम फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ऑप्शन ए सही जवाब है ना। 96 नंबर है, माहिर लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 8 हिस्सों में तकसीम किया है, ख़ानदान अलसना के नाम से 8 हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। 97 नंबर है, ग़ियास अहमद गद्दी के भाई का क्या नाम था? सही जवाब पहला है, इलियास अहमद, इलियास गद्दी नाम था उनका, इलियास अहमद गद्दी। 98 नंबर है, किसका कौल है मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया है? ऑप्शन ए 98 का सही जवाब है, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। 99 है, ऊद हिंदी किसकी सिनफ़ी नौइयत क्या है? ऊद हिंदी नावल है, मकतूब निगारी मतलब खतूत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। मिर्ज़ा गालिब का दूसरा खतूत है, पहला है ऊद हिंदी पहला है, दूसरा है उर्दू मुअल्ला, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 100 है, आब हयात की सिनफ़ी नौइयत क्या है? आब हयात जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, ये तज़किरा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।